Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video lecture, we have discussed about the motivation, features of motivation and Maslow's needs of hierarchy theory. In today's video session, we will discuss about the financial and non-financial incentives. We will discuss about financial and non-financial incentives. It is also known as financial or monetary motivators or non-monetary motivators. So first of all, we will start with financial incentives. तो financial incentives क्या होते हैं? These are those incentives which are given in monetary form to motivate the employees. These are the economic benefits which are given to the employees for motivating or for the betterment of the organization. So there are number of financial incentives or there are number of financial motivators which are as written. First one is pay and allowances. Second one is productivity linked with wage incentives. Third one is bonus. Fourth one is profit sharing. Fifth one is co-partnership or stock option. Sixth one is retirement benefits. And seventh one is perquisites. So first one is pay and allowances. पे एंड अलाउंसेस क्या होता है? इट इज अ बेसिक सैलरी, इट इज अ बेसिक पे विच इज गिवन टू एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग इट सर्विसेज. यानी कि सर्विसेज देने के लिए जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, बेसिक पे दी जाती है या उसके साथ जो डीएनएस या कुछ और अलाउंसेस दिए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पे एंड अलाउंसेस. अगर एम्प्लॉई को सेटिस्फैक्ट्री पे मिल रही है, अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री सैलरी मिल रही है और सेटिस्फैक्टरली उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं, ही विल ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड. अगर एम्प्लॉइज को उसकी प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉपर बेसिक पे नहीं मिलेगी, then they will not contribute with their full potential in the organization. तो वो organization में full potential से काम नहीं कर पाएगा. So the basic salary, the basic pay or a satisfactory wages or a salary to the employees always motivate to work better and better for the organization. Second one comes productivity linked with wage incentives. तो इसमें क्या है कि जो ज्यादा बढ़िया काम करेगा, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, दे विल बी पेड मोर एज कंपेयर टू दोज पर्संस हु आर कंट्रीब्यूटिंग लेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव कि एक बंदा है जो टारगेट से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, एक बंदा है जो टारगेट से कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो टारगेट से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिलेंगे एज कंपेयर टू दोज which will we can say that are contributing less, we can say that less in the organization, and they always remain satisfied if there is a annual increment in their salary. अगर उनकी सैलरी में हम एनुअल इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, देन ऑल्सो दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फुल पोटेंशियल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. तो सेकंड वन क्या था? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स. थर्ड वन क्या है? बोनस. बोनस क्या है? बोनस इज अ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, इट इज अ वन टाइम रिवॉर्ड विच इज गिवन टू द एम्प्लॉइज बिसाइड्स फ्रॉम देयर सैलरी. यानी कि सैलरी के अलावा जो उसको हम वन टाइम वी कैन से दैट या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पे करते हैं फॉर रेंडरिंग बेटर सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बोनस. तो बोनस में हम देखो क्या कहते हैं, जैसे दिवाली बोनस हो गया या फिर वी कैन से दैट क्रिसमस बोनस हो गया, न्यू ईयर बोनस हो गया. तो इट इज अ वन टाइम रिवॉर्ड और इट इज अ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड विच इज गिवन टू द एम्प्लॉई from their salaries so that he can work better for the organization.
then ultimately when we will give some bonus, we will give some incentives other than salary, then ultimately they will contribute with their full potential in the organization. Fourth one comes profit sharing. So generally profit sharing क्या होता है? Profit sharing is due to the two parties, that is one is a owner and second one is a employee. जो owner है वो प्रॉफिट्स, वो ऑनर है जो वो क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, और जो एम्प्लॉय है वो सर्विसेज रेंडर करता है. दोनों के कारण ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं. क्योंकि जो ऑनर है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और जो एम्प्लॉयज है वो अपनी सर्विसेज देके ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. तो अल्टीमेटली जो ऑनर है उसको इन्वेस्टमेंट में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और एम्प्लॉय को सर्विसेज रेंडर करने के लिए क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी. अगर उसको सैलरी के अलावा कुछ प्रॉफिट्स में से भी हिस्सा दिया जाए, देन ऑटोमेटिकली दे विल वर्क मोर, दे विल वर्क विद देयर फुल पोटेंशियल कि मैं और मेहनत से काम करूं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए ताकि मेरे को उसमें से ज्यादा हिस्सा मिले. तो दैट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग. तो जब ऑनर को प्रॉफिट होते हैं, अगर वो उसका कुछ हिस्सा किसके साथ शेयर कर ले, ऑनर एम्प्लॉइज के साथ शेयर कर ले, तो एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं एंड दे विल वर्क विद द फुल पोटेंशियल, और वो और ज्यादा मेहनत से काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े और हमें उसमें से कुछ हिस्सा मिले. नेक्स्ट, को पार्टनरशिप एंड अ स्टॉक ऑप्शन. को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन इज जनरली अ partnership of the employee in the organization when side by side when he is or she is working. तो जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके जो काम को देखते हुए, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने उसको बोनस में क्या कर दिए, शेयर्स दे दिए. बोनस में क्या दे दिए, उसको शेयर्स दे दिए, जिससे क्या है उसका ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या हो गया, वी कैन से दैट हिस्सा हो गया, एक वी कैन से दैट शेयर हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशन में. साइड बाय साइड व्हेन ही इज ए एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, साइड बाय साइड वो एम्प्लॉय भी है, काम भी कर रहा है, और साइड बाय साइड वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है. तो जो एम्प्लॉयज बेटर काम करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको क्या है, बोनस में क्या कर देते हैं, कुछ शेयर्स दे देते हैं. तो जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो भी इनको देख करके क्या है, बढ़िया काम करेंगे कि अगर हम बढ़िया काम करेंगे तो हमें भी क्या है, जो ऑनरशिप राइट्स है ऑर्गेनाइजेशन में वो मिल सकते हैं. तो दैट इज अ को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन. सिक्स्थ वन इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स. रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी कि व्हेन एम्प्लॉय बिकम रिटायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको कुछ क्या दिया जाता है, जैसे ग्रेचुटी फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड है, या कुछ वी कैन से दैट पेंशन बेनिफिट्स दे दिए. तो जिससे क्या है, एम्प्लॉयज क्या रहता है, सेटिस्फाइड रहता है. अगर हम एम्प्लॉयज को कह देंगे कि द एम्प्लॉयज हु विल वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स आफ्टर द रिटायरमेंट, दे विल गेट द can say that pension, they will get the gratuity, and ultimately they will work better for the organization. Next, perquisites. perquisites क्या होते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा we can say benefits, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, या फिर we can say that वेकेशन के लिए उनको हॉलीडे दे दी, ठीक है, देन समर वेकेशन में कहीं ना कहीं टूर दे दिया, या फिर we can say आने जाने का खर्चा कंपनी पे कर रही है, जो बच्चों की फीस है वो कंपनी पे कर रही है. दैट इज सम perquisites. Perquisites some extra benefit which is given to the employees other than the salary. Rent free accommodation, traveling allowances दे दिए, ठीक है, देन बच्चों की फीस पे कर दी, ठीक है, उसके बाद कोई वी कैन से दैट एक साल में टूर दे दिया एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को. तो दीज आर द perquisites which will motivate the employees for work, which works for the betterment for the organization. So these are some of the financial incentives which we have discussed in this video.
So please watch this video very carefully, and if you have any of the queries, please note it down on your notebook, and I will sort out your queries in tomorrow's Zoom session. And in the next video session, we will discuss about the non-financial incentives. Thanks and have a nice day.